Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. We will start the lecture with the name of Allah. For this we will listen the Surah Falaq with Urdu translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से और हसद करने वाली की बुराई से जब वो हसद करने लगे। Today we will do the exercise 2.3, chapter number 1 of 10th class mathematics. Okay students, 2.3 exercise. We have already proved the sum of roots and product of roots in the previous lecture. As I have told you that the sum of roots is represented by S, which is equal to alpha plus beta, and alpha plus beta is equal to minus b over a, right? We have proved this one. हमने ये कल prove कर लिया था. Minus b over a is the formula of sum of roots, and product of roots is equal to c over a. And what is a, what is b, what is c? As we know, the coefficient of x square is a, the coefficient of x is b, and this constant is known as c. So what is the first question of exercise 2.3 is, without solving find the sum and product of the roots of the following quadratic equation. आपने इन equations को solve नहीं करना, you just find out the sum and product of roots. Sum and product of roots. Now move towards the solution. Let's suppose we have first of all we will do part number 1. X square minus 5x plus 3 is equal to 0. So first of all we will find out the value of a, b and c. A is 1, b is minus 5, c is 3. Because the coefficient of x square is 1, the coefficient of x is minus 5, and the coefficient of simple constant is 3, right? So what is the sum of roots? Sum of roots means minus b over a, minus b over a. Then minus, what is the value of b? Minus 5. And what is the value of a? 1. So the answer is 5. What is the product of roots? C over a. C 3 and a is 1. So just you will use the formula of sum and product of roots, and just putting the value of a, b and c, then you will get the answer. Sum of roots and product of roots. That is very, very simple. Okay, now part number 5. Lm x square plus m plus n x plus n minus l. So what is a? L plus m. What is b? M plus n. And what is c? N minus l. If we suppose that alpha and beta are the roots of this equation, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली जो भी आपने रूट्स फाइंड आउट करने होंगे अल्फा या बीटा की वजह, तो आपको सबसे पहले तो उस इक्वेशन के रूट्स आपको सपोज करने हैं कि बेसिकली वो रूट्स हैं क्या. तो आपने क्या किया, सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा, फॉर एग्जांपल इसके 2 रूट्स हैं. अब सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स लिया. सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या, माइनस बी ओवर ए. इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी इसकी जगह आप एस भी लिख सकते हैं. एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस दिस वन. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? m plus n. And what is the value of c? What is the value of c? L plus m, right? तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, आप m plus n डिवाइड बाय l plus m कर सकते हैं, और आप चाहें तो माइनस को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं. Now the next one is product of roots. Product of roots आपके पास क्या होता है, c over a, right? c over a आपके पास क्या है, c, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा को आपने मल्टीप्लाई करवाया. देन n माइनस
L is the C, ये देखिए n minus L is the C, and what is A? L plus M, तो ये आपके पास आ गया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सेम इसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सब आपने इसी तरह से करने हैं। पार्ट नंबर 1, ठीक है, पार्ट नंबर 2 ये देखें सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, पार्ट नंबर 3 P is the A, Q minus Q is the B and R is the C, ठीक है। पार्ट नंबर 4 A plus B is the A, minus A is the B and B is the C, ठीक है। So all the parts should be done like this, right? Now the question number 2, find the value of K if there are two parts, ठीक है। We will do the second part. Sum of roots of the equation this is 3/2 times the product of roots. अब देखिए एक चीज होती है सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और एक है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा। अब आपने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो सम ऑफ रूट्स हैं वो 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने ये करना है कि आपने उसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, सम ऑफ फ्रूट्स जो है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में है सम ऑफ फ्रूट्स जो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। रिमेंबर द इक्वेशन, आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। आप सबसे पहले ए की, a is the 1, b is the 3k minus 7 and c is 5k according to the given condition। अब देखिए गिवन कंडीशन क्या थी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी s इज इक्वल टू 3/2 द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसी आपने यही इक्वेशन लेनी है, लेकिन आपके पास ये जो 3/2 है ना, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे फर्स्ट पार्ट में है सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट, तो वो 2p हो जाएगा। अगर वो कहते हैं सम ऑफ फ्रूट्स इज 1/3 ऑफ प्रोडक्ट, तो s इज इक्वल टू 1/3p हो जाएगा। अगर वो कहते हैं सम ऑफ फ्रूट्स इज थ्राइस यानी 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो 3p हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपके पास ये रहेगी। अब आपने उन्होंने कहा कि ये रूट्स हैं, तो सबसे पहले तो आप रूट सपोज करेंगे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर हम कहते हैं कि अल्फा और बीटा जो है इन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सबसे पहले तो आप सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड आउट करोगे। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है, अल्फा बीटा। सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला c/a। So putting the values -3 plus k and 5k, these are the sum of fruits and product of fruits, ठीक है। आपने पहले इक्वेशन लिखी that s is equal to 3/2 times of its product. Then you will suppose the roots alpha and beta are the roots of given equation. Then you will put the values in -b/a, that is sum of fruits, and you will get -3 plus k। अब ये प्लस कैसे आया है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये वाला प्लस इसलिए आया। एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज c/a, तो ये आपके पास 5k आ जाएगा। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन थी, सम की जगह आप क्या पुट करेंगे, -3k + 7, और p की जगह क्या पुट करेंगे, 5k। नाउ लुक एट दिस, ये देखें सम आपके पास था अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट आपके पास होता है अल्फा बीटा, ठीक है। सो -3 plus k और ये 5k। उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल आपने ऑपरेशंस यूज करना है। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इट विल बी मल्टीप्लाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 इज मल्टीप्लाइड बाय इनसाइड द ब्रैकेट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट में आप क्या करोगे, 2/3 की जगह 2 लिख देंगे और वो आपका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। Okay, now question number 3, part 1. Find k. Again, you have to find out the value of k, but the statement is changed. Sum of the squares of the roots of the equation, this is 2.
and sum of the squares of the roots of the equation is 6. देखें वेरी सिंपल है। मैंने क्या कहा था, एक चीज देखिए आपने याद रखनी है कि इन क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले तो अल्फा और बीटा को सपोज करना है कि हर इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो अल्फा एंड बीटा है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये आपने स्टेटमेंट मस्ट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके बाद देखें उन्होंने कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, यानी जब आप दो रूट्स जो आपने सपोज किया उनका स्क्वायर लेंगे, यानी अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और उन दोनों को प्लस करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल, और सेकंड पार्ट में 6 के इक्वल। नाउ मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ताकि आपको सही समझ आ सके। देखें ये इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये लिखने के बाद आपने पहली चीज दूसरी चीज करनी है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने। उसके लिए आपने ए बी सी की वैल्यू आपको बताना चाहिए। 4k इज द ए, 3k इज द बी एंड -8 इज द सी। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, -b/a, आपने फॉर्मूला पुट कर दिया -3/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, वो भी आपका आंसर आ गया -2/k, ठीक है। अब देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, रूट के स्क्वायर का सम, अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर क्या होगा, बीटा स्क्वायर। तो पहली कंडीशन तो ये थी ना कि उन दोनों रूट्स का आपने स्क्वायर लेना है, हमने स्क्वायर ले लिया। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, उन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। सेकेंड पार्ट में वो 6 के इक्वल है तो उधर 2 की जगह 6 लगा दो, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा है या फिर अल्फा बीटा है। तो आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये देखें, अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो आप 2 अल्फा बीटा को इधर ले आए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये उन्होंने वैल्यू मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में वैल्यू पुट की है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या था, -3/4, ये देखें दिस वन, ठीक है। -3/4 का स्क्वायर लिख दिया, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2/k। उसके बाद सिंपल आपने क्या किया, इसका स्क्वायर लिया 9/16, 2 2 4 होता है 4/k, एलसीएम लिया 16k, 9k हो जाएगा और यहाँ पे 64k, 64 सिंपल, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ k दैट इज 64/3, 64/3। सो आपने इसी तरह से ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। Now if you have any question regarding this you can ask me। जिब्रान एंड हमाद ने जो है वो क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखिए बेटा आपके पास फार्मूला होता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, आपने वहीं से निकाला है। लुक एट दिस फार्मूला, देखिए a की जगह हमने अल्फा लिख दिया, b की जगह बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो ये क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये देखें ऊपर देखें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए ना। अच्छा एक और चीज, अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे बी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को होल स्क्वायर में कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये जो पूरी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, देखें अगर हम 2 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और ये देखें आपके पास यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये जो चीज़ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमें इसका फॉर्मूला चाहिए था, और ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया, इस फॉर्मूला की जगह, यानी इसकी जगह हमने क्या कर दिया है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, हमने अब उसकी जगह जो है वो वैल्यू पुट कर दी, राइट। Okay, thank you so much. Have a nice day and blessed day. And Juma Mubarak to all of you. Allah Hafiz.